Good afternoon, student. Today's topic is the array in C++. In C++, array is a variable that can store multiple values of the same type, multiple values of the same data type. Okay. For example, suppose a class has a 27 student and we need to store the grades of all of them. Okay. Grade store करना है 27 student के. Instead of creating 27 separate variable, we can simply create an array. मीन्स 27 सेपरेट स्टूडेंट के लिए 27 वेरिएबल क्रिएट करने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक अरे क्रिएट कर लेंगे और उसमें 27 क्या देंगे, उसका साइज दे देंगे. मतलब 27, this is the number of student, so this is the double, this is the data type grade 27. okay, here grade is an array. तो ये ग्रेड जो है दिस इज एन अरे दैट होल्ड मैक्सिमम ऑफ 27 elements of a double type. In C++, the size and types of array cannot be changed. Okay, size and types of array. Size means if you size of the data type, and type of array means if you declare the integer int array, double array, it cannot be changed after its declaration. जैसे डिक्लेरेशन दे दिया और उसके बाद आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया तो उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होगा. ओके, इन सी प्लस प्लस डिक्लेरेशन अभी उसको डिक्लेयर कैसे कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स देखो. डेटा टाइप, डेटा टाइप आप कुछ भी दे सकते हो, कैर दे सकते हो, इन दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो. ठीक है. और अरे नेम, अरे नेम, अरे नेम भी आपका वेरिएबल नेम के जैसा ही रहेगा. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है दिस इज द साइज ऑफ द अरे. देन सेमीकोलन. Okay, for example, int x is the array name and 6 is the size of array. किसका साइज, x का साइज. ठीक है. 6 is the size of array. Then access element in C++ array. अभी एलिमेंट कैसे एक्सेस करना अरे में वो देखेंगे. In C++ each element in an array is associated with a number. The number is known as an array. Number is known as an array. In index, we can access element of an array by using those indices. Array syntax to access array element. Array index. Consider the array x. We have seen. अभी देखो array कैसे उसको एक्सेस करना. तो वो डायग्राम देखिए. अरे मेंबर, ये जो एरो करके मेंबर दिखा है, एरो करके जो मेंबर है, दिस इज द लोकेशन. x0 स्टार्टिंग ऑफ द अरे लोकेशन इज 0. दिस इज द इंडेक्स, लोकेशन है. ठीक है. x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 4. ये और अरे इंडाइसेस 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट ऑफ C++ means elements of array in C++. Abhi few things are remember. The array indices start with 0, meaning x of 0 is the first element stored at the index 0. ठीक है. 0th लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 0 नंबर का. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0th लोकेशन पे 0 एलिमेंट ही स्टोर हो. दिस इज द एग्जांपल. इन द साइज ऑफ एन अरे n is the last element is stored at index n minus 1. In this example, x of 5 is the last element. Okay, element of an array have consecutive addresses. Consecutive address means एक के बाद एक. For example, suppose the starting address of x0 is 2120. This is the ASCII address. Okay, then the address of the next element one will be 2124d. The address of x of 2 will be 2128d and so on. This is the ASCII address of the uh, array element. Okay, here the size of each element is increased by 4. This is because the size of int is 4 byte. ओके, अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर का बाइट, इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट. सो तो ईच एलिमेंट विल बी इंक्रीज बाय द 4. ओके, सो C++ अरे इनिशियलाइजेशन. इन सी प्लस अभी इनिशियलाइज वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं. इन C++ इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन अरे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन. फॉर एग्जांपल देखो कैसे हम उसको वैल्यू, ये 6 क्या है, ये साइज है, कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, और ये क्या है, वैल्यू है. इंट एक्स ऑफ अरे ऑफ एक्स साइज इज 6.
19, 10, 8, 17, 9. This is the array element. Okay. Array member, 0th location which is stored 19, 1st location stored the 10, second number stored the 8. This is the indices and this is the member, array member. Okay. 9 which is stored at 4th location and 15 which is stored at the 5th location. Array element and their data. Another method to initialize array during declaration. अनदर मेथड क्या है कि जैसे पहले इसमें क्या दिया था हमने, साइज दिया था. सेकेंड इसमें आपको अगर ज़्यादा, आपको एक से मतलब आपको अगर अरे का साइज नहीं देना है और डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. आप उसका साइज मत दो और नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें स्टोर करो. वी हैव नॉट मेंशन द साइज ऑफ अरे. इन सच अ केसेस द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंप्यूट द साइज. तो कंपाइलर क्या करेगा, अगर आपने 6 एलिमेंट उसमें एंटर कर दिए है तो वो ऑटोमेटिकली उसका साइज क्रिएट कर लेगा 6. ठीक है. बट अरे का जो स्टार्टिंग लोकेशन रहेगा वो जीरो से स्टार्टिंग होगा, इसीलिए वो 0 से स्टार्ट होके 5 पर एंड होगा. ठीक है. मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपका लास्ट एलिमेंट रहेगा. ठीक है. C++ अरे विथ एम्प्टी मेंबर्स. In C++, array has a size and we can store up to n number of elements in the array. However, what will happen if we store less than n number of elements? ठीक है. अभी n नंबर ऑफ, अगर मैंने साइज बढ़ा दिया बट मैंने 3 वेरिएबल अगर स्टोर किए तो क्या होगा. तो हियर द अरे x has the size of 6. However, we have initialized with it only 3 elements. In such a cases, the compiler assign random value to the remaining place. Oftentimes, this random value is simply 0. जो remaining 3 numbers है, it will declare by the 0. Okay. अभी देखो आप 19, 10 और 8 यही इतने तीन ही मेंबर मैंने डिक्लेयर किए थे. तो बाकी की जो 3 मेंबर है, 3 वैल्यूज है, उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, 0 डिक्लेयर करके साइज को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. हाउ टू इंसर्ट एंड प्रिंट अरे एलिमेंट. अभी एलिमेंट देखो उसमें कैसे प्रिंट करना है अरे एलिमेंट को, डिक्लेयर कैसे करना है. इंट मार्क्स. मार्क्स इज द अरे नेम, 5 इज द साइज. अभी उसमें 5 उसमें एंटर किया, 19, 10, 8, 17, 9. ठीक है. और साइज और सेकेंड और मार्क्स 3 ऑफ लोकेशन. अभी फिफ्थ थर्ड लोकेशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, 9. ठीक है. टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर. अभी स्टोर द वैल्यू एट थर्ड पोजीशन. सी इन, डायरेक्ट उसने क्या किया है, सी इन पोजीशन. थर्ड लोकेशन पर 9 स्टोर हो जाएगा. टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, इंसर्ट एट द ith पोजीशन. ठीक है. तो सी इन मार्क्स i-1 और सी आउट स्टेटमेंट मार्क्स ऑफ 0 और देन अगेन सी आउट स्टेटमेंट मार्क्स i-1. This is the how insert and print the element of an array. Displaying array element. अभी डिस्प्ले कैसे करना है, ये इंसर्ट करना मतलब कीबोर्ड थ्रू, या हम डायरेक्टली प्रीडिफाइन करते हैं वैसे. अभी हम अरे को डिस्प्ले कैसे करेंगे. हैश इंक्लूड. अभी देखो प्रोग्राम, हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन. अभी मैंने इंट नंबर इज द अरे और 5 नंबर का मैंने अरे डिक्लेयर किया, उसमें 5 वैल्यू मैंने स्टोर की. सी आउट का स्टेटमेंट दिया, द नंबर्स आर. तो पहले मैंने क्या किया, फॉर. अभी कांस्टेंट इंट एम्परसेंड एंड कोलन नंबर, सी आउट का स्टेटमेंट दिया. अभी प्रिंटिंग अरे एलिमेंट यूजिंग रेंज बेस्ड ऑन फॉर लूप. अभी फॉर लूप अगर इसने डिफाइन किया है तो ये हम ऐसे भी दे सकते हैं, कांस्टेंट इंट एम्परसेंड एन. कांस्टेंट मतलब ये जो वैल्यू रहेंगी वो एज इट इज प्रिंट होने के लिए कांस्टेंट ये क्या दिया, कीवर्ड दिया. इंट क्या है, डेटा टाइप, क्योंकि एन क्या है, एन इज द न्यू वेरिएबल विच विल बी डिफाइंड. ओके. और एम्परसेंड क्यों दिया है, एम्परसेंड से क्या होगा, किसको डिफाइन, एन किसको रेफर कर रहा है, नंबर को. और फिर उसके बाद सी आउट का स्टेटमेंट. आप उसको ऐसे भी दे सकते हो, फॉर आप आई करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.